Hello students, this is class 6. I am Mrs. Seema Singh, your assistant teacher. Today we will start our chapter first, diversity in social and political science. I will tell you about the diversity. As we know, India is a vast country. Different types of people belong to different religion, caste, language and color live together. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सो फॉर एग्जाम्पल, you come to school daily, your mother give different tiffin or lunch every day. Have you even wondered why she does so? Why don't you eat the same food or dish every day? Why we don't like to wear the same dress on all occasions? Well, it has become diversity. Adds variety to our life. It's our life interesting. So first point is various forms of diversity. India is a land of diversity. People here speak different language, eat various types of food, celebrate different festivals and practice different religion. So India does not have a uniform culture. This diversity in India is due to geographical and historical region. Now, the meaning of diversity is clear. The state of being different from one another. So, next point is difference between diversity and inequality. It means कि क्या different in diversity और inequality में क्या difference होता है. We must not confuse diversity with inequality. While diversity refers to the state of being different, inequality is the state of being unequal. इनइक्वालिटी कैसे उभर रही है? आउट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पीपल इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया इनइक्वालिटी इमर्ज आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम. द कास्ट सिस्टम इज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. आपने भी देखा है. इट ऑल्सो delegated the professions that the members of these groups could practice without being subject to any changes. So तो हम कह सकते हैं द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. पीपल इन द सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंड अपॉन द वर्क दे डिडंट अकॉर्डिंग टू द डिवीजन. अगर कोई पॉटर है कोई, तो उसका बेटा भी आगे जाके पॉटर ही बनेगा. अगर वॉशरमैन है तो वॉशरमैन बनेगा. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंसेस होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड द inequality is the being unequal. Diversity emerge out of because of different culture, tradition, etc. But inequality emerge out of due to lack of resources and opportunities. Then one of reason of the diversity is different culture. One of the reason of inequality is caste system and poverty. तो इस तरह से हमारा जो ये थर्ड टॉपिक है causes of diversity. Diversity is caused by many factors. Some factors आपको यहाँ नज़र आ रही होगी एक लिस्ट. Some is history, geography, occupational differences, language, religion, physical characteristic of the people. तो अब हम इनको so first causes is history. History around the world travel from one country to another in search of new land, jobs, of trader partners. आपको पता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाके सेटल हो जाते हैं, एक कंट्री से अनदर कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं. इसके बाद वो न्यू कस्टम से इंट्रोड्यूस होते हैं, न्यू कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरह से वहाँ के मूल निवासी यानी कि इनहैबिटेंट वहीं के वो बन जाते हैं. वैन न्यू कस्टम एंड न्यू जितनी भी कल्चर्स हैं, तो ये चीज़ें जो है वो इनको एक तरह वहाँ के मूल निवासी बन जाते हैं. डाइवर्स सोशल प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस इन सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, मुस्लिम रूलर्स केम इन सेटल्ड इन इंडिया. ठीक है, जब वो लोग यहाँ पर आए, वो यहीं पर आके बस गए. उसके बाद वो एक पर्शियन लैंग्वेज के साथ यहाँ पर आए थे, बट पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने अपनी एक लोकल लैंग्वेज के अंदर, जो इंडिया की अपनी लोकल लैंग्वेज थी, उसी के अंदर उसका विलय कर दिया, उसको मर्ज कर दिया. इट गेव्स राइज टू अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड. सेकेंड फैक्टर इज़ जोग्राफी. द अर्थ कंसिस्ट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. आपने देखा इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आपको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलेंगे. यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा, फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ है, आइलैंड्स हैं. और यही जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो आपको एक यूनिटी
नज़र आती है। आप देखिए, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ जो है आपको काफ़ी ह्यूमिडिटी मिलेगी। अगर आप एक माउंटेन एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ आपको फ्रिज का क्लाइमेट मिलेगा। और क्लाइमेट ऑफ रीजन देयर विल लीडिंग ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, ड्रेसेस है, कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया प्रेफर सी फूड्स, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया में रहते हैं तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो सी फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके वाइल डेजर्ट एरिया के अंदर जो है हमारे ब्रेड मेड ऑफ मिल्क फ्लोर ज़्यादा खाते हैं। सिमिलरली साउथ इंडिया पीपल वियर लाइट एंड कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड थ्रू आउट द ईयर। वाइल द पीपल इन नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सीज़न जो है वो कपड़े ड्रेसेस जो है वो पहनते हैं, जैसे कि प्लेन्स पे जो कि हमारे जो डिफरेंट सीजन्स जो से हम इंट्रोड्यूस। आप एक पिक्चर के थ्रू भी यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, नीचे आपको प्लेन नज़र आ रहा है। इस साइड अगर आप देखते हैं तो आपको एक माउंटेन एरिया नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, लैंड फॉर्म्स इन इंडिया प्ले अ की रोल ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी इन द फूड हैबिट्स पे, हमारे ड्रेस कस्टम्स, हमारे कल्चर ऑफ द पीपल्स। थर्ड फैक्टर है हमारा ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस। ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस जो है हमारे जोग्राफिकली फीचर्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोस्टल रीजन्स में पर्सन्स रहते हैं तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो फिशिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई फर्टाइल प्लेन्स पे रहते हैं तो मेजरली इन्वॉल्व इन द। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है लैंग्वेज। आपको पता है इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, अबाउट 1600 लैंग्वेज, एंड 22 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू नो कि हिंदी इज़ अ देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश आर रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। इट मीन्स कि आप देखो, अगर हम लोग अलग रीजन्स पे रहते हैं, अलग अलग जोग्राफिकली कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आप अलग रीजन पे जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए तो आपको हर जगह पे हर तरह की लैंग्वेज मिलेगी। जैसे अगर आप गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको बंगाली लैंग्वेज मिलेगी। केरला में आपको मलयालम लैंग्वेज मिलेगी। तो इस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डाइवर्सिटी में। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिलीजन। इंडिया इज़ कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट। डू यू नो, आपको भी पता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसे कहते हैं। बिकॉज इंडिया गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स। यहाँ पर सभी को अपना अपना धर्म, अपने अपने रिलीजन को अपनाने का, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिली हुई है। All religion communities enjoy equal status in the society. People belong to all religion are free to profess. And इसके अलावा people following Hindu, Islam, Sikh, Christianity, Buddhism, Jainism and other religions live here in peace and harmony. It means कि हम लोगों को शांतिपूर्वक किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी धर्म को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ डिफरेंट फेस्टिवल्स भी होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं, तो हम इन सब चीज़ों को, किसी को भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पीस एंड हार्मनी, इट मीन्स कि सामंजस्य होना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से हम। हमारा लास्ट फैक्टर है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल्स। आपको पता है कि फिज़िकल फीचर्स ऑल्सो मेकअप डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। आप देखिएगा, अगर आप किसी भी रीजन में जाएंगे, जोग्राफिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं कि कोई किसी भी रीजन में आपको कोई शॉर्टर पर्सन मिलेगा, कोई टॉल पर्सन मिलेगा। सम हैव लाइट कलर्ड आइज़ होंगी, सम हैव डार्क कलर्ड आइज़ होंगी। स्पिरिट ऑफ दीज डिफरेंसेस वी ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड लिव टुगेदर इन आवर सोसाइटी। तो आप देखिएगा फिज़िकल कैसे, आपको अलग अलग पहाड़ी अगर इलाके पे जाते हैं, कहीं माउंटेन एरिया में आप जाते हैं तो वहाँ के जो पीपल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हाइट कम मिलेगी, कलर बहुत ज़्यादा फेयर मिलेगा। कश्मीरी साइड चले जाइए, इसी के अपोजिट अगर केरला साइड जाते हैं तो वहाँ का जो है, क्योंकि क्लाइमेट इस टाइप का है वहाँ का, तो वहाँ का जो लोगों का जो कलर्स है वो डार्क कलर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हमारे जोग्राफिकल कंडीशन या जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से ही हमारे